Go ahead and cash out all the bitcoins. The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently, we need to have cash. Elections are going on. Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently, we need to have cash. Elections are going on. Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently, we need to have cash. Elections are going on. Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. Boss. आणि या क्षणाची सगळ्यात मोठी आणि महत्त्वाची बातमी, राष्ट्रवादीच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांची एक ऑडिओ क्लिप समोर आली आहे। एका माजी IPS अधिकाऱ्याने ही ऑडिओ क्लिप शेअर केल्याचं कळतंय आणि या ऑडिओ क्लिपमध्ये बिटकॉइन्सचा उल्लेख आहे। निवडणुका आहेत, तातडीने पैसे उपलब्ध होणं गरजेचं आहे, मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे असा उल्लेखही त्यात आहे। नाम है रविंद्रनाथ पाटिल, मैं एक्स IPS अफसर हूँ। एक केस में मेरी कंपनी की तरफ से मुझे एक्सपर्ट करके क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेशन में मुझे एक एक्सपर्ट करके बुलाया था 2018 में। अगेंस्ट दैट मुझे 2022 में उस केस में फ्रॉड किया करके अरेस्ट किया गया था। तो 14 महीने मैंने अंडर ट्रायल करके जेल में गुजारे थे। तो उस समय मैं वही सोचता था कि ये हुआ क्या है, केस क्या है, मेरे को क्यों फंसाया गया, मेरे साथ दूसरे भी साथी थे, क्या हुआ था एग्जैक्टली। बहुत सारी थियरी थी। क्या हुआ, परसों अचानक हम तो अपना काम कर ही रहे थे सच ढूंढने का। परसों अचानक उस केस में एक हमारे खिलाफ विटनेस था जिसका नाम था गौरव मेहता। ये एक सारथन एसोसिएट्स करके एक ऑडिट फर्म है, उसका एक एम्प्लॉय है, और उसके एक सिग्नल अकाउंट से मुझे एक मैसेज आया। 4-5 घंटे मुझे कॉल आते गए, मैसेज आते गए, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर मैंने उसको जब रिस्पॉन्ड किया तब उसका मुझे चैटिंग शुरू हुआ। उसने मुझे बताया कि सर आप मुझे जानते हो क्या, मैं ये हूँ। अभी मैं ऑलरेडी 14 महीने गुजार चुका हूँ, तो मुझे भी डर था, तो मैं बहुत कॉशियसली उसके साथ चैटिंग कर रहा था। तो उसने मुझे बताना शुरू किया, सर ऐसा है कि 2018 में अमित भारद्वाज को जब अरेस्ट किया गया था तो उसके पास एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट था, हार्डवेयर वॉलेट, जो वॉलेट का मिस एप्रोप्रिएशन तभी हुआ था उसी पीरियड में, और वो वॉलेट उस समय के जो कमिश्नर थे अमिताभ गुप्ता, उन्होंने रिप्लेस करवाया और दूसरा वॉलेट कहीं तो लेके रखा है। उसी केस में हम लोगों को अरेस्ट हुई, लेकिन रियल परपिट्रेटर्स या उसके जो असली उस गुनेगार जो है वो अमिताभ गुप्ता और उनकी टीम थी, भाग्यश्री नवटाके और अमिताभ गुप्ता, 2 IPS अफसर का नाम उसने स्पेसिफिकली लिया। लेकिन तभी भी मैंने भरोसा नहीं किया। उसने बाद में बोला कि ये पैसा जो है बिटकॉइन का, ये गौरव मेहता कह रहा है, और उसने ये कहा कि ये पैसा जो है बाद में महाराष्ट्र के लोकसभा इलेक्शन में फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। उसने 2 लोगों के नाम लिए, एक नाम लिया सुप्रिया सुळे का, दूसरा नाम लिया नाना पटोले का। मैंने फिर भी भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने बाद में बताया कि अभी भी महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में उसी बिटकॉइन का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, और इन्हीं 2 लोगों के लिए अमिताभ गुप्ता के आदेश पे मैं खुद मतलब गौरव मेहता बार बार दुबई जाकर बिटकॉइन को कैश में कन्वर्ट करता हूं, और वो कैश महाराष्ट्र के इलेक्शन में
इस्तेमाल हो रही है। जब मैंने उसको बोला भैया मेरे को और बस फंसाओ, मैं ऑलरेडी एक बार अंदर जा चुका हूँ, तो उसने उसके बाद मुझे कुछ ऑडियो कॉल भेजे। वो वॉइस नोट्स है, व्हाट्सएप पे आई हुई, जो गौरव मेहता को आई हुई थी। तो उसमें सुप्रिया सुळे की 3 ऑडियो मैसेजेस है, जिसमें वो क्लियरली बोलती हुई समझ में आ रहा है कि मुझे बिटकॉइन बेचो और मुझे कैश दे दो। उसमें एक जगह वो ये भी कहती है कि आप इंक्वायरी की चिंता मत करो, जब हम सरकार में आएंगे तब हम हैंडल करेंगे। हाँ, ये हुआ। फिर मैंने उसको पूछा कि ये कौन है, उसने खुद ही जवाब दिया कि ये सुप्रिया सुळे है। बाद में उसने और एक कॉल भेजा, जो वॉइस नोट अमिताभ गुप्ता ने उसको भेजी थी बताने के लिए कि मेरे ऊपर प्रेशर है। ये वॉइस नोट अमिताभ गुप्ता और नाना पटोले के बीच में है, जिसमें नाना पटोले कहते हैं कि अमिताभ अभी तक पैसा नहीं आया, क्या हुआ। उसके बाद मुझे 3 या 4 कॉल उसने अमिताभ गुप्ता के साथ भी भेजे हुए हैं, जिसमें अमिताभ गुप्ता उसको बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मुझे इमीडिएटली 50 करोड़ चाहिए, मुझे और 100 चाहिए, ये पैसा दुबई से जाके तुम किसी को देना है, मुझे इमीडिएटली कैश दे दो, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ये सब कुछ। उसने साथ में एक ऑडियो कॉल भेजा, जिसमें भाग्यश्री नवटाके उसको बता रही है, हेल विद दिस बिटकॉइन केस बॉस, मुझे अभी पैसा चाहिए, मैं फ्राइडे आ रही हूँ मुंबई। ये कौन बोल रहा था? ये भाग्यश्री नवटाके IPS अफसर बोल रही है। ओके। अभी मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं कोई प्रैंक किया जा रहा है, मेरे साथ कुछ हो रहा है। तो मैंने गौरव को पूछा कि तुम गौरव मुझे कुछ एविडेंस दे दो। तो उसने मुझे खुद का एक वॉइस नोट भेजा, जो उसने अमिताभ गुप्ता को भेजा था, जिसमें वो कह रहा है कि बिटकॉइन केस की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमने 4 वॉलेट बनाए हैं, पाटिल और घोड़े जो मेरे साथ दूसरा आरोपी था, उन दोनों के नाम पे, और उन दोनों के नाम पे उस अकाउंट्स के नाम पे हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो इसके बाद कुछ भी इन्वेस्टिगेशन होता है तो पकड़े वो लोग जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। वो इतना बोल रहा है। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था क्यों बोल रहा है ये सब कुछ, लेकिन उसने अपने चैटिंग में मुझे बताया कि देखो ऐसा है कि मैं ये बिटकॉइन नहीं बेचना चाहता अभी, क्योंकि मेरा बहुत इस्तेमाल हो चुका है। यदि मैंने सारे बिटकॉइन बेच दिए तो ये लोग मुझे एलिमिनेट करेंगे, मुझे जान का खतरा है। हो सकता है ये कारण हो कि उसने ये बोला हो, लेकिन फिर ये सारे कॉल मैंने सुने। गौरव का कॉल मैं पहचान सकता हूँ, क्योंकि गौरव के साथ मैंने बहुत कुछ काम किया था। भाग्यश्री नवटाके को तो मैं 2016 से जानतो। या क्षणाची सगळ्यात मोठी बातमी, पण आता त्यात पुढची बातमी अशी आली आहे की खोटी माहिती पसरवली जाते असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलंय। मतदारांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला जातोय अशी सुद्धा प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे। फौजदारी तक्रार दाखल केली आहे असं सुद्धा ही ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर आणि या सगळ्या बातम्या माध्यमांमध्ये पसरल्यानंतर सुप्रिया सुळे यांनी ट्विट केलंय, मतदानाच्या आधी मतदारांना वेठीस धरण्यासाठी खोटी माहिती पसरवली जाते। बिटकॉइन गैरव्यवहार प्रकरणी खोट्या आरोपांविरोधात आम्ही तक्रार दाखल केली आहे, सायबर गुन्हे विभागाकडे फौजदारी तक्रार दाखल केली आहे असंही सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलंय। लोकशाहीमध्ये अशा गोष्टी होतात, या घटनेचा मी निषेध करते असं सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटवरून म्हटलंय। या क्षणाची सगळ्यात मोठी बातमी, सुप्रिया सुळे यांची एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली, माध्यमात बातम्या मोठ्या प्रमाणात पसरल्या। एक IPS अधिकारी समोर आले, माजी IPS अधिकारी। त्यानंतर आता भारतीय जनता पक्षानेही पत्रकार परिषद घेत महाविकास आघाडीला काही प्रश्न विचारले, तर सुप्रिया सुळे यांनी एक ट्विट केलंय आणि या सगळ्या आरोपांना उत्तरं दिलेत। मतदानाच्या आधी मतदारांना वेठीस धरण्यासाठी खोटी माहिती पसरवली जाते असं सुप्रिया सुळे यांचं म्हणणं आहे। आणि ट्विटरवरून त्यांनी असं म्हटलंय की बिटकॉइन गैरव्यवहार प्रकरणी खोट्या आरोपांच्या विरोधात आम्ही तक्रार दाखल केली आहे। म्हणजे या सगळ्या प्रकरणात माजी IPS अधिकाऱ्यानं ऑडिओ क्लिपचा आधार घेत जे आरोप केलेले आहेत ते खोटे आहेत, निराधार आहेत असंही सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे। या क्षणाची एक मोठी बातमी, आजचा प्रचार संपल्यानंतरचा आजचा दिवस हा अत्यंत वादळी सकाळपासून ठरलेला आपण पाहतो आहोत। आधी विनोद तावडे यांच्या पैसे वाटपाचं सगळं प्रकरण झालं आणि ते शांत होत नाही, तोच संध्याकाळी उशिरा सुप्रिया सुळे यांच्या कथित ऑडिओ क्लिपची बातमी समोर आली। या बातमीनंतर पुन्हा एकदा वातावरण ढवळून निघायला सुरुवात झाली आहे। थेट दिल्लीहून पत्रकार परिषद घेण्यात आली आहे। भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने
आणि दावा करण्यात आला आहे की यातल्या गोष्टी खऱ्या आहेत आणि या गोष्टी खऱ्या आहेत की नाही याची स्वतः सुप्रिया सुळे आणि नाना पटोले यांनी माहिती द्यावी। भारतीय जनता पक्षाने अशी मागणी करताच आणि जाहीर पत्रकार परिषद घेताच सुप्रिया सुळे यांनी ही ट्विट केलं आहे आणि सुप्रिया सुळे यांनी IPS अधिकाऱ्यांना जो दावा केला आहे त्याचं खंडन केलं आहे। बिटकॉइन गैरव्यवहार प्रकरणी खोटी माहिती पसरवली जाते असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलेलं आहे। त्यामुळे या सगळ्या प्रकरणातला गुंता वाढत चालला आहे। आत्तापर्यंत फक्त सुप्रिया सुळे यांच्याच कथित आवाजातली ऑडिओ क्लिप समोर आली आहे, पण या संबंधित माजी IPS अधिकाऱ्याचा दावा आहे की यात आणखीन अनेक ऑडिओ क्लिप आहेत। एवढंच नाही तर सध्याच्या काही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची नावंसुद्धा या माजी IPS अधिकाऱ्यानं घेतलेली आहेत। त्यामुळे या सगळ्या प्रकरणाची व्याप्ती आणखीन वाढणार असं दिसतंय। खरं तर उद्याचा बुधवारचा दिवस हा महाराष्ट्रातला मतदानाचा दिवस आहे। राज्यातल्या विधानसभेच्या निवडणुकांचा प्रचाराचा धुरळा बसल्यानंतर आजचा दिवस त्या धुरळ्यापेक्षाही वादळी ठरला। एक मोठं वादळ आरोप प्रत्यारोपांचं, वेगवेगळ्या ठिकाणी छोट्या हल्ल्यांचं, पैसे वाटपाच्या आरोप प्रत्यारोपांचं, हाणामारीचं आणि त्यानंतर आता संध्याकाळ होत नाही तो एक ऑडिओ क्लिपसुद्धा समोर आली आणि ज्यावरून आता आरोप प्रत्यारोप मोठ्या प्रमाणात होऊ लागले। आपण पुन्हा एकदा ते ऑडिओ ऐकूयात। हे ऑडिओ क्लिप या माजी IPS अधिकाऱ्यानं समोर आणलेले आहेत। Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? त्यामुळे ऑडिओ क्लिपवरून आता मोठं महाभारत मतदानाच्या आधी होणार असं दिसतंय। मतदानाला खरं तर आता अवघे काही तास बाकी आहेत। सकाळी 7 वाजल्यापासून महाराष्ट्रात सर्वत्र 288 जागांसाठी विधानसभा निवडणुकांकरता मतदान सुरू